Hey friends, welcome you all to my YouTube channel SST Now, and today we are doing the chapter number 1 of class 9, that is French Revolution. Before that, I just wanted to tell you to watch this video completely, as I have given some very important 1 mark questions in between. And if you like this video, please like, subscribe and share my YouTube channel. At the end of the video also, I have provided with some very important objective type questions related to the specific topic. Hey students, today we are doing the chapter French Revolution of class 9th, and first of all we will start with the word monarch. So what do you mean by the term monarch? Monarch means जो king होता है, afterwards who will become the next king? उसका जो बेटा होगा, he will become the next king. Then his son will become the next king, and so on. So this is the meaning of the term monarch, because we will be using this word again and again in this video. First of all, we will see how was the condition of France. जो फ्रांस की सोसाइटी थी, बेसिकली दैट वाज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. फर्स्ट वाज द फर्स्ट एस्टेट, second was second estate, and third was third estate. Now how to differentiate what was the difference in between these two? Now we will see that in the first estate, basically the clergy people used to come under this thing. Now अब clergy कौन होते थे? Basically clergy होते थे the people who belong to the church. जो चर्च के बिल्कुल जो चर्च के जो लोग होते थे, फादर एंड ऑल, बेसिकली दे यूज टू कम अंडर द क्लर्जी. सेकेंड वॉज द नोबिलिटी. तो नोबिलिटी के अंदर कौन आता था? बेसिकली नोबिलिटी के अंदर आता था फर्स्ट ऑफ ऑल द किंग. किंग के बाद हिज फैमिली, देन हिज मिनिस्टर्स, हिज टॉप मोस्ट मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, दे विल कम अंडर दिस सेकेंड एस्टेट. थर्ड एस्टेट में आते थे बाकी सब. इसको क्लर्जी एंड नोबिलिटी को छोड़ के बाकी जो भी लोग थे, दे विल कम अंडर this third estate. Now what was the difference? Now if you are a clergy, suppose वहाँ पर एक बाय बर्थ सिस्टम था. दैट बाय बर्थ इफ़ यू आर लाइक क्लर्जी, दैट मीन्स नो नीड टू पे एनी टैक्स. Same is with the nobility. That means if you belong to this category, no need to pay the tax, any tax, either of the tax no need to pay. But what about the third estate? That means all the taxes have to be paid by the थर्ड एस्टेट पीपल. ये जो बेचारे थर्ड एस्टेट के पीपल हैं, इन लोगों को सारे टैक्स देने हैं. जो वहाँ की जो लैंड थी, द लैंड ऑफ फ्रांस, इट लाइक जो क्लर्जी के पास थी, नोबिलिटी के पास थी. पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन थिंग. 90% पीपल ऑफ फ्रांस, दे बिलोंग टू दिस थर्ड एस्टेट. 90% जो पॉपुलेशन थी वो कहाँ बिलोंग करती थी? थर्ड एस्टेट को. अब बात करते हैं वहाँ की लैंड की. बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल, ऑल ऑफ द पीपल वर फार्मर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स, पीजेंट्स देयर. तो जो लैंड बिलोंग करते थे, फर्स्ट एस्टेट की भी होती थी पर्सनल लैंड, सेकेंड एस्टेट की होती थी. थर्ड एस्टेट में बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनके पास अपनी खुद की लैंड थी. सो दैट मीन्स ऑल द अदर पीपल, दे वर वर्किंग ऑन द लैंड ऑफ द क्लर्जी एंड नोबिलिटी. काम भी करते थे, प्लस अगर इनका और भी कुछ काम होता था तो दे हैव टू डू दैट. इन्हें करना पड़ेगा वो काम, बिकॉज ये एक हाई क्लास पीपल हो गए. फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, और ये जो बेचारे हो गए, ये बिल्कुल थर्ड एस्टेट पीपल हो गए कि आप सारा टैक्स भी दे रहे हो, आपको कोई फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है, and you are under this kind of burden there in France. Plus you have to remember again, from the board point of view, there were the indirect taxes. They were known as the tile, and they were the indirect taxes. Again taxes कौन pay कर रहा है? Again the third estate people only. They will not pay the tax, they will not pay the tax, only the third estate people. जो ये clergy हैं, इनको भी एक tax देता था third estate. It was a different tax and it was known as the tithe. Again it is important from the board point of view. It was like third estate people, they were giving it to the clergy. और ये टाइल था, इट वॉज एन इनडायरेक्ट टैक्स. जो देता था कौन? टैक्स का कुछ भी आ जाएगा. हु वर गिविंग? ओनली द थर्ड एस्टेट पीपल वर गिविंग. सो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी. जो फ्रांस की पूरी सोसाइटी थी वो पूरी की पूरी इस तरीके से डिवाइडेड थी. Okay friends, so we have
वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन फ्रांस दे हैड अ मोनार्क सिस्टम, और मैंने आपको इसका मीनिंग भी बताया था दैट किंग होगा, किंग का बेटा होगा, एंड नेक्स्ट ही विल बिकम द किंग. सो finally in the year 1774, and you have to remember the years as well because this is history and they're quite important. In the year 1774, Mr. Louis XVI, he is Mr. Louis XVI, and remember you have to write his name this way itself, 16 करके आप 16 नहीं लिखेंगे, you have to write in Roman numerals only. Louis XVI became the king. He was hardly 20 years old that time and he belonged to the Bourbon dynasty. अब बर्बन से आप ये मत समझिएगा जो आप बिस्किट खाते हैं कि उसकी बात आप मैं कर रही हूँ. नो, बेसिकली दिस वाज द बर्बन फैमिली, बर्बन डायनेस्टी. ही बिलोंग टू दिस बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द 1 mark point of view. The board can ask these kind of questions. So he belonged to the Bourbon family and he got married. He got married to the princess of Austria. Now you have to remember this thing, Austria. This is not Australia, rather this is Austria. शादी हुई थी किसके साथ हुई थी? उनकी प्रिंसेस थी जो ऑस्ट्रिया की, उनके साथ उनकी बेसिकली he got married, a beautiful girl. So he got married to the princess of Austria and he was very happy. Wow, I am the king now. Wow, आई एम सो हैप्पी, किंग बन गया हूँ मैं, शादी वादी हो गई, सब बहुत अच्छे से चल रहा है. बट अब प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हो गई है? वेयर इज़ द प्रॉब्लम नाउ? जब when Louis XVI became the king, then he realized that all the treasury was empty. Now what do you mean by the term treasury? treasury का मतलब होता है खजाना. हर किंग के पास एक खजाना होता है. एंड ही realized that the ट्रेजरी वॉज ऑल एम्प्टी. कुछ खजाने में तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खाली है. अब जो बेचारा हैप्पी था, वाओ बोल रहा था, वो बेचारा अब सैड हो गया कि ये क्या हुआ, ऐसा तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था दैट दिस ऑल्सो कैन हैपन. सो दिस वॉज द केस ऑफ Louis XVI. and you need to remember one thing, that when Louis XVI became the king, फ्रांस वॉज अंडर डेप्ट. फ्रांस एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं था, रादर फ्रांस वॉज अंडर दी डेप्ट. फर्स्ट पॉइंट अब हम ये देखेंगे बेचारा लुई 16 के पास कुछ था क्यों नहीं. वाई द ट्रेजरी वॉज ऑल एम्प्टी. सारी की सारी ट्रेजरी गई कहाँ खाली हो गया खजाना. सो बेसिकली दीज आर द पॉइंट्स दैट आई एम टेलिंग यू वन बाय वन. इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, like marks of the question. If 3 mark question can come, 3 points you can write. 5 mark question, 5 points, but you need to elaborate. So first point, long years of war. पहले क्या होता था? पहले के जो किंग्स होते थे वो लोग एक दूसरे की कंट्रीज़ पर अटैक करते थे. जब आप अटैक करते हो किसी भी कंट्री पे तो यू नीड अ लॉट ऑफ मनी. सो दैट वाज द रीज़न कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, जिसकी वजह से सारा का सारा खजाना जो है धीरे धीरे एम्प्टी हो गया था. अब किंग बना था, किंग होते हैं तो किंग कहाँ रहेगा? ऑब्वियसली दे विल लिव इन अ पैलेस के अंदर रहेंगे. सो दे ऑल्सो यूज टू लिव इन अ ब्यूटिफुल पैलेस एंड द नेम ऑफ द पैलेस वॉज पैलेस ऑफ वर्साइल. यू नीड टू रिमेंबर बिकॉज इसके अंदर और भी पैलेस के नाम हैं. सो दिस वॉज द पैलेस ऑफ वर्साइल. बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस था, बहुत ही ह्यूज पैलेस था, बहुत लाविश पैलेस था. अब जब आप कोई भी लाविश चीज़ रख रहे हो, बड़ी चीज़ रख रहे हो, ऑब्वियसली यू नीड अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस फॉर दैट. आपको बहुत ज़्यादा उसका मेंटेन उसको करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा था. Next point you need to remember. First I will write just Palace of Versailles. Then what was the next point? Next was that खुद के पास पैसे नहीं है. He helped who? अमेरिका. किसकी हेल्प की उसने? अमेरिका की. 13 कॉलोनीज़ को उसने इंडिपेंडेंस दिलाई. फ्रॉम whom? फ्रॉम ब्रिटेन. जैसे आपके साथ होता है ना, आपका कोई फ्रेंड आपसे लोन लेने आता है, आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी और से उधार लेकर उसे दे देते हो. आपने तो उधार ले लिया, अब उसके पास भी पैसे नहीं है, आप और अंदर डेप्ट में आ गए. सेम थिंग हैपेंड विद मिस्टर लुई 16. बेचारे ने लोन लिया कि मुझे किसकी हेल्प करनी है? मुझे हेल्प करनी है अमेरिका की. क्यों करनी है? मुझे उससे आज़ाद कराना है. कितनी कॉलोनीज़ थी? 13 कॉलोनीज़ थी. और किससे कराना था?
ब्रिटेन से आज़ाद कराना है। तो इसके लिए उसने बहुत सारा लोन लिया था, जिसकी वजह से ऑलरेडी लोन था फ्रांस के ऊपर, लेकिन इस वॉर की वजह से फ्रांस को बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ गया था, जिसकी वजह से फ्रांस बहुत ज़्यादा लोन के अंदर आ गया था। इट बिलियंस ऑफ लिवरेज टू अ डेप्ट एंड बेसिकली लेंडर्स जिन्होंने उन्हें उधार दिया था वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लग गए थे, जिसकी वजह से लुई 16 की हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी कि नाउ व्हाट टू डू। नेक्स्ट वाज इफ़ यू आर अ किंग ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटेन योर कोर्ट, आपको अपना कोर्ट भी मेंटेन करना पड़ेगा। देन आपको अपने ऑफिशियल्स को सैलरी भी देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपनी आर्मी का खर्चा सारा एक्सपेंडिचर जो है जितना है वो सब कुछ उठाना पड़ेगा। सो दीज वर दी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, ये सब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे जो लुई 16 को उठाने पड़ रहे थे, और जिसकी वजह से जो ट्रेजरी था वो बिल्कुल खाली हो चुका था। एंड फ्रांस वॉज अंडर डेप्ट, फ्रांस जो था वो क्या था, अंडर डेप्ट, अंडर लोन था। फ्रांस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एंड हे स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ द टाइम फॉर सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। So students, if you like my video, please like, subscribe and share my YouTube channel.